द बिगेस्ट सीक्रेट डिस्क्लोज्ड। यही सेशन है जिसका आप सबको बहुत दिन से इंतजार था। पंडित संजीव जी, जो पंडित जी जब भी लास्ट टाइम जब आए थे, वो एक ऐसा सेशन था जो सही मायने में ऐतिहासिक था। एंड इतने ज्यादा लोगों के लाइफ्स को वो टच किया, इतना हाईली इम्पैक्ट किया, बहुत ज्यादा लोगों के अंदर चेंजेस आए। हर दिन पंडित जी का मुझसे कोई किसी ना किसी लोगों ने नंबर मांगा है। आज का सेशन एक माइलस्टोन सेशन में इसको देख रहा हूँ। जो भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, जूम पे देख रहे हैं, आने वाले टाइम में भी देखने वाले हैं, दिस सेशन इज अ सेशन which is a turning point of your life, I can say, because the biggest secret is getting disclosed in this session. एंड ये सेशन में जो भी लोग आ गए हैं, बैठे रहिए, अगले 50 मिनट तक हिलिएगा भी नहीं। एंड मैं पंडित जी का स्वागत करना चाहूंगा सत्वा टॉक्स में। रियली अ हाई मोमेंट, वेरी एक्साइटेड। एंड पंडित जी, जैसे आपको पता है, इस सेशन का पर्पस है कि जो भी ये सेशन देखे उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, उनकी लाइफ सेलिब्रेशन बन जाए, और वो दूसरों के भी जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, एक स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करे। यही गुरुदेव का विजन है। एंड गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बना लिया है, और इसी को लेके पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड पंडित जी, आपको भी जस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ग्रुप के आगे। सो टॉकिंग अबाउट हिम, बहुत सारे लोग उनको तो ऑलरेडी अब जान चुके हैं। He is an internationally renowned Nadi and Vedic celebrity astrologer who has mastered Nadi astrology and consulting in over 55 plus countries. He has been doing accurate predictions since 26 plus years. He is one of the best astro consultant trusted by people for perfect prediction across the globe. His various perfect and accurate predictions include Russia-Ukraine war, UP election, coronavirus, lockdown, Ram Mandir, Lok Sabha, Delhi elections, UK PM Boris Johnson, World Cup, IPL matches, Balakot strike, and many more. His tweets and predictions on Sanjeev-Astro. You can also follow him on Twitter also, where you can see his predictions. He has received the award and title of Living Legend in Divine Sciences from the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji. He uses ancient Nadi Sutras for perfect prediction in all aspects of his predictions. His prediction accuracy is 90 to 95% and above. He also specializes in Vastu, numerology, palmistry, mantras, gemstones, homeopathic, and suggested remedies which are easy and highly effective. He has taught Nadi astrology to hundreds of students across the world, enabled them to become professional astrologers guide. He also teaches meditation and art of living happiness program to many people. And he is also a panel astrologer with Vedic Dharma Sansthan. He belongs to an astrologer's family and has started learning astrology at the tender age of 9 years from his father, who was a renowned doctor and astrologer. He believes that with the grace of Guru, devotion, astrology, prayers, and rightful karmas, one can be protected and can change many things positively to a great extent. By following his suggestions, remedies, one can live a happy and prosperous life and overcome negative energies, obstacles, difficult phases, and negative karmas. He has started his career as a software engineer, later as a management professional, worked with top MNCs at key position. He holds MBA degree from New Delhi, and today, he is here with us. बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका आज के इस सेशन में। हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एंड ये भी सीक्रेट जानना चाहेंगे कि कैसे आपके 90 to 95% प्रेडिक्शंस एक्यूरेट होते हैं। एंड ऑब्वियसली द बिगेस्ट सीक्रेट जिसका हम सब वेट कर रहे हैं। यस पंडित जी, ओवर टू यू। Thank you, Abhishek Ranjan ji. Thank you so much. And thank you, Samir ji, for inviting me and giving me an opportunity again on the Sattva Talk. It's a great pleasure and honor to be here with all of you.
I'm really happy to be here. So thank you so much. And before I start the session, let me bow down to the lotus feet of my master, Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurve Namaha. Tasmai Shri Shri Gurve Namaha. Jai Gurudev. Thank you, viewers. Thank you, everyone, for joining on the show. This is such an amazing meeting and an amazing place to be with all of you. देखिए, ये पूरी प्रकृति जो है रहस्य से भरी पड़ी है. सब कुछ में बहुत ही रहस्य है. बट अगर हम अपने मन को स्थिर कर लें, अपने मन को, अपने आप को स्थिर कर लें अपने अंदर, तो सारे रहस्य अपने आप ही खुलते चले जाते हैं. और ये सब संभव ना सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से हो सकता है. सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से. जैसा कि हमने पहले भी जाना कि गुरु कृपा भी कैसे मिलती है, राइट? गुरु का दर्शन, गुरु भक्ति, उस पर हमने बहुत कुछ जाना. अभी आगे और बहुत कुछ जानेंगे. बहुत सारे स्मॉल बिग सीक्रेट शेयर करूंगा जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं आपके लिए. ठीक है, सब सुनना चाहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके साथ मिलकर यहाँ पर. देखिए, कुछ ज्योतिष की बात करेंगे. जैसा अभिषेक जी ने बोला कि प्रेडिक्शन ऐसी एक्यूरेट कैसे होती है, और आगे क्या है इसके आगे. देखिए, प्रेडिक्शन एक्यूरेट ना, इसके बहुत सारे छोटे छोटे सूत्र हैं. जानना चाहेंगे सब लोग? वेरी गुड. देखो, आप किसी विद्या पे मास्टर करते हो और वो विद्या आपके लिए रिजल्ट देना शुरू कर देती है, तो उस मास्टरी में सबसे बड़ा योगदान जो है, चाहे वो कोई भी विद्या, आप डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, लॉयर हैं, कुछ भी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है आपके गुरु का. जब आप गुरु के वचनों पर चलते हो और उनकी हर बात का पालन करते हो, तो चीजें अपने आप ब्लॉसम होने लग जाती हैं, अपने आप. देखिए, मेरी ज्योतिष के पीछे, मैं कभी ज्योतिष में आता नहीं. थैंक यू फॉर अभिषेक जी फॉर सच ए लॉन्ग इंट्रोडक्शन. उसके काबिल तो नहीं हूं मैं इतने, बट मालिक ने इतना बना दिया है और कि मैं कुछ छोटा अर्जित कर सकूं इस, जब तक मैं इस पृथ्वी पे हूं. तो ये जर्नी जो है ना, ये शुरू होती है बचपन से ही. जब मैं 5 साल का था, तो पिताजी के बगल में खड़े होके मैं सुना करता था. पिताजी हाथ देखते थे, कुछ कैलकुलेशन करते थे, और कभी ऐसे ही देखते ही बता देते थे. तो मैं सोचता था ये पिताजी क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं. तो मेरी भी जिज्ञासा जागी कि भाई क्या करते हैं. मैं खड़े होके बगल में सीखने लग गया, देखने लग गया. और शायद पहली प्रिडिक्शन मैंने 8 या 9 साल में की होगी जैसा, और बिल्कुल परफेक्ट. मैं खुद सरप्राइज था. मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब चीज है. बचपन था तो डर भी लगता था कि कैसी चीज है, इतने सत्य कैसे हो सकती है.
बट धीरे धीरे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते रहेगा, अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, तो मालिक का गाइडेंस मिला कि पढ़ाओ, पढ़ाओ, विद्या को बांटो। जैसे कि शायद ये मेरे पास ऑलरेडी भंडार भरा पड़ा है, मुझे नहीं पता, ये तो देखो मालिक ही जानते हैं, मुझे तो पता ही नहीं मेरे पास क्या है। ये तो जब गुरु के शरण में आते हैं तभी कहते हैं ना, हर तरह से विकास होता है आपका। तो हमें थोड़ा सीक्रेट बताता हूँ आपको, तो ये मेरे को सोचो, मेरी जर्नी जो है एक स्वप्न से चालू हुई। मालिक सपने में आए, बोले पढ़ाओ। मैंने कहा अच्छा पढ़ाओ, खुद नहीं आता, अभी मैं पढ़ाऊँ, बहुत साल पहले की बात। तो डाउट हुआ, भाई डाउट आता है, ये संशय आता है। पर एक बात बता दो, जब मालिक सपने में आते हैं ना, तो वो उसमें डाउट नहीं करना, वो सही में आते हैं। ठीक है। तो सोचा कि अच्छा ठीक है, ये आया। फिर मैंने बात सोचा कि क्या करूं, ये तो बहुत बड़ा फील्ड है, इसको करना और पढ़ाना इज समथिंग वेरी, देखो प्रिडिक्शन करना, किसी को बोलना मैं कहूँगा बहुत आसान है, पर पढ़ाना, किसी को ज्ञान देना, ये बहुत बड़ी बात। तो मैंने कहा, बात किया, एक दो जो सीनियर लोग हैं उनसे बात किया, जैसे जो मेरे गाइड रहे और हैं भी। तो उन्होंने बोला गुरुदेव से पूछ लो। मैंने कहा ठीक है, ये बात भी अच्छी है भाई, वेरीफाई कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है, छोटी मोटी जर्नी तो है नहीं। और इसमें तो कर्मों का आदान प्रदान बहुत होता है, जो हम आगे बात करेंगे इस बारे में भी। तो मालिक के पास गया, मालिक से पूछा कि क्या करना है। उन्होंने बोला हाँ हाँ, मतलब ऐसे जैसे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, ठीक है, कि हाँ हाँ करो करो, इसको आगे करो, बिल्कुल बढ़ाओ। और उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई। डिफिकल्ट थी, आसान नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, सब तरह से करना, पर गुरु की आज्ञा थी, गुरु का आदेश था, तो आगे बढ़ते चले गए इसमें। और जब इस फील्ड में जब इतनी पत्रियां देख ली, इतनी पत्रियां देख ली, हजारों 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 हजार पूरी दुनिया से पत्रियां देख ली, तो ऐसे ऐसे एंशियंट सीक्रेट्स पता चले जो किताब में पढ़ने से नहीं पता चलेंगे। आप किसी भी बुक में उठा लीजिए, देखिए बुक से कभी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है, और ना बुक से ज्ञान आता है, गुरु ज्ञान तो गुरु से ही आता है। तो वो एक चैनल बनाते हैं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि, वो एक चैनल बनाते हैं, डिवाइन जो है एक चैनल बनाता है कि इसके थ्रू चीजें बटेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो ऐसा मेरा सौभाग्य रहा। मैं कहूँगा देखिए, ये जो सौभाग्य होता है ना गुरु से मिलना और गुरु का सानिध्य पाना, इसके लिए जन्मों जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं, जन्मों जन्मों के। आप ये मत सोचिए कि आपने क्रिया सीख ली और ये हो गया तो मिल गए। आपने कितने जन्मे पुण्य किए, इकट्ठे हुए, तब जाके आपको सौभाग्य मिला, सानिध्य मिला कि आप आए रहे और इसमें गुरु के बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़े। अदरवाइज कोई आते चले भी जाते, निकल भी जाते, सब लोग टिक नहीं पाते। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत जन्मों के पुण्य। पर पुण्य पाप में ना थोड़ा फर्क है। पुण्य पाप अगर एक लेवल पे देखा जाए ना, दोनों को ही समर्पण कर देना चाहिए। आपने किसी की हेल्प की, कोई अच्छा कर्म किया, पुण्य हुआ। पर जब पुण्य करो ना, तो उसका अभिमान नहीं करना है, उसको समर्पण कर देना है। नहीं तो पुण्य क्या है, सोने की बेड़ी, और पाप क्या है, लोहे की बेड़ी। बेड़ी दोनों ही है, दोनों ही बेड़ी है। तो जब भी कोई अच्छा काम करो ना, मेरे थ्रू मालिक करवा रहे हैं, सारा पुण्य उनको समर्पित। गंगा नहा के आए, उधर करके आए, वो करके आए, तीर्थ करके आए, सब पुण्य उनको समर्पित। जो भी है मेरा है, जो भी मेरा है वो तेरा है, जो भी मेरा है वो तेरा है। इस भावना से सारे काम करोगे ना अगर, दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट। अभी बहुत सारे खोलूंगा धीरे धीरे। जो भी मेरा है, अपने ऊपर तो लेना ही नहीं, मेरा सत्संग सेंटर है, मैं ये करता हूँ, मेरा ये डिपार्टमेंट है, मैं ये करा रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अंदर से खाली हैं, आप हॉलो एंड एम्प्टी हैं। हॉलो एंड एम्प्टी हैं, उसकी उस कृतज्ञता से और उस स्पेस से अगर जब काम करेंगे ना,
तो आप समझ लीजिए सब चीजें सिद्ध होने लग जाएंगी। लोग बोलते हैं मुझे सिद्धियां कब मिलेगी, मैं कह रहा हूं अभी मिल जाएंगी, अभी मिल जाएंगी। आप करो तो सही जो बोल रहा हूं, जो भी करो। देखो, नाम है तो उनका है, यश है तो उनका है, अपयश है तो भी उनका है, दोनों चीजें। पर आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी कि मेरे गुरु का अपयश हो जाए। पर हाँ, लोग अगर अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, तो कुछ लोग खींचेंगे भी, बोलेंगे भी। तो खाली होना बहुत जरूरी है। और खाली कैसे होगे भाई, गुरु ने तो टूल दे ही रखा है, सुदर्शन क्रिया। और जो मैंने लास्ट में बताया था कि भाई रोज रात को सोने से पहले समर्पण करो, उनको ध्यान करो और सो जाओ खाली होके। जब खाली होके सो जाओगे तो अपने आप जिस रात में जिस स्पेस पे रहोगे ना, वो आपको सिद्धियां देने लग जाए, आपको सिद्धियों की प्राप्ति होने लग जाएगी। आप अपना रूटीन सब करते हो, पर खाली होके सो। मतलब क्या है, रात को उनको ध्यान किया, सब चीजें खाली की, जो मुझे पॉजिटिव चाहिए, जो मुझे चाहिए, मैंने वो अपने गुरु से, अपने यूनिवर्स से, अपने गुरु से मांगा, और बस हो गया। और आप देखिए वो शक्ति, आप आपका गुरु का ग्रेस ऐसा बरसेगा कि वो सब चीजें आपके पास आने लग जाएगी ऑटोमेटिक। थोड़ा टाइम लग सकता है पर होगा जरूर, फॉर श्योर होगा, 100% गारंटी, 99 भी नहीं है। मैं अपनी प्रिडिक्शन में ना, क्या होता है, मेरे को जब 100% भी पता होता है ना, तो मैं बोलता हूँ 99%। 1% में हमेशा स्पेस छोड़ देता हूँ, यार डिवाइन कभी भी प्लान चेंज कर सकते हैं, मैं क्या हूँ, मेरी क्या हस्ती है। तो मैं, अगर मुझे 200% भी पता होगा ना, तब भी मैं 99% बोलता हूँ, क्योंकि मैं 1% मालिक के लिए छोड़ता हूँ कि भाई वो कभी भी चेंज कर दें, उनको दया आ जाए, भाई चलो इसका कर्मा चेंज करना है। तो मैं बोलता हूँ भाई 99% ये, जब 200% होता है तब मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो डिवाइन आपको पहले से ही इतना कुछ दे चुका है ना, बस आपको रियलाइज करने की बात है। जो भी चीज चाहिए ना, बस उनके चरणों में समर्पित कर दो, ये नहीं तो इससे अच्छा रात को ध्यान करके सो जाओ। मैं कह रहा हूँ 6 महीने भी आपने रूटीन फॉलो कर लिया ना, आप देखो कैसे चलता है। तो ये बेसिक है, ये फाउंडेशन। फाउंडेशन किसी भी चीज को बताते हैं तो फाउंडेशन क्रिएट करते हैं ना, बिल्डिंग बनानी है तो समझ, तो ये फाउंडेशन। उसके बाद देखिए, मेरे पिताजी ने मेरे को बताया था, व्हेन आई वाज मे बी 12 years old, समथिंग लाइक दैट। मेरे गुरु ने बताया, मैं, देखिए मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से गुरु के सानिध्य में रहा, गुरु की तत्व में रहा। 5 साल की उम्र में गुरु मिल गए थे और गुरु तत्व में था। 12-14 साल में या 13-14 साल में दर्शन हुए। और फिर हमेशा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि पिताजी गुरु को बहुत मानते थे, तो बहुत बहुत एनलाइटन मास्टर से मिला, बहुत जर्नी रही। तो आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, हो सकता है बहुत पता हो आपको, हो सकता है ना भी पता हो, पर छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो कि आपका लाइफ 180 डिग्री क्या 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर उसकी एक शर्त है। शर्त क्या है, आपको शाकाहारी यानी वेजिटेरियन, वेजिटेरियन रहना पड़ेगा। वेजिटेरियन मेरे ख्याल से सभी लोग हैं यहाँ पर, आई थिंक मोस्टली हमारा तो वेजिटेरियन ही। और देखिए सीक्रेट सब डिवाइन के ही हैं। ठीक है, सब डिवाइन के ही हैं। पर इसके लिए क्या है, पहले तो फाउंडेशन अपना स्ट्रांग कर लो, कि जब भी सो ना, मैं मैं जब कॉलेज की लाइफ में सब लोग घूम रहे फिर रहे होते हैं, तो मैं रात को जब करके सोता था। ठीक है, तो 12th क्लास से आदत पड़ गई थी, 10th 11th 12th क्लास से। ठीक है, मतलब प्रार्थना करके जब करके, जैसा भी सिखाया वैसा करता गया। तो हॉलो एम्प्टी होना बहुत जरूरी है, इस चीज को सिद्ध करना है तो। और सिद्ध हो जाएगा ये समझ लो, जो जो उसको करेगा उसके पास ये सिद्धि आ जाएगी। तो एक्चुअली बोलूं तो मालिक की दया से आप सबको सिद्धियां ही मिल जाएंगी।
सबसे बड़ा क्या चीज है, वेजिटेरियन रहना पड़ेगा। मैंने आज तक इसको ना कम से कम लाखों बार, शायद काउंटिंग भूल गया होगा, लाखों बार आजमाया होगा और एक बार भी फेल नहीं हुआ, एक बार भी। मैं सोचता था यार इनकी पावर जो है ना इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर नहीं है। 2002 में शायद पहली बार मैं यूएस गया, यूएस में अपनाया, वहां पर भी मैं कहा ये क्या बात है, ये तो सब जगह काम करता है। समझ रहे हैं ना, हर जगह हर परिस्थिति में काम करेगा, ऐसा मंत्र है या ऐसा वाक्य है, पता होगा। बट क्योंकि अब मैं आपको दे रहा हूं, तो देखिए कोई भी चीज कब काम करती है, जब कोई देता है, जब कोई देता है। ऐसे तो बहुत चीजें पता होंगी आपको, कहीं पढ़ी होंगी, कहीं सुनी होगी, पर वो मैनिफेस्ट कब होता है, जब किसी के थ्रू होता है। हमें बहुत सारी चीज पता होंगी, पर वो मैनिफेस्ट कब होती है, जब गुरुदेव बोलते हैं। वही है, कितनी सारी स्टोरीज है, मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं जी हमने यूएस के बेस्ट ऑफ द डॉक्टर से कराया इलाज, पर बच्चा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता। इतनी स्टोरी बताते हैं। पर हम आश्रम गए और हमने बोला कि मेरी पत्नी ने बड़े दुखी होकर बोला मालिक से कि भाई जो है बच्चा नहीं हो रहा, ये अच्छा, ऐसे बस सहजता से आशीर्वाद, ब्लेस, हाँ हो जाए, हाँ हो जाए। और मालूम था 1 हफ्ते बाद कंसीव हो गया। ऐसा चमत्कार देखा है कहीं? 2 साल से पूरी दुनिया में बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को इलाज चल रहा है, और एक बार ब्लेसिंग दी और मतलब 10 दिन में न्यूज मिल गई, हाँ हाँ करो आगे बढ़ो। ऐसे जैसे मालिक बोलते हैं, उनका स्टाइल इतनी सहजता से देते हैं ना। देखिए मालिक के लिए सबसे डिफिकल्ट काम बताऊं क्या है? खैर उनके लिए डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो उनके लिए सब सहज है। पर इसके लिए अगर मैं बोलूं कि उनको अपने आप को छुपाए रखना, कि वो सब कुछ नहीं है, उनके आपको कुछ छुपा, क्योंकि वो कितना छुपाएंगे अपने आप को, इतना इतना सहजता से बोलते हैं ना। मतलब उनके लिए सबसे डिफिकल्ट काम शायद मेरे ख्याल से हो जाता है, क्योंकि देखो जब भी कोई इतना, जब सोर्स हिमसेल्फ द होल यूनिवर्स एंड यूनिवर्स एंड यूनिवर्स एंड यूनिवर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्स के जो देवी देवता भगवान जिनको वर्शिप करते हैं, वो आपके गुरु हैं। तो आप ये सोचिए कि वो कितना भी नॉर्मल रहेंगे तो वो चीजें तो आती है ना अपने आप ऑटोमेटिकली। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट हो जाता है काम कि भाई ये नॉर्मल कैसे, क्योंकि भाई उनको तो एक साधारण मनुष्य की तरह शो करना है अपना। तो हर तरह से कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि वो बहुत साधारण है। तो दैट इज अ मोर, देखो ये आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, पर ये ना एक ऐसा चल रहा था, तो कोई बातचीत चल रही थी, तो किसी हमारे, हम भी बगल में बैठे हुए थे, तो कहीं चल रहा था, तो ये क्वेश्चन था कि भाई आपके लिए तो शायद सबसे डिफिकल्ट काम होगा कि यू हैव टू बिहेव नॉर्मल। इन द सेंस कि आपको है ही नहीं, आप साधारण मनुष्य हैं, आप साधारण कोई भी गुरु, पर वो क्या है ना, वो आप जानने में ही हमें शायद पता नहीं कितने जन्म लग जाए, पार नहीं पा सकते, पार नहीं पा सकते। तो एक बात मैंने बोली कि गुरु वाक्य या गुरु का आदेश जो कि गुरु भक्ति होता है, तो आपको बताऊं जब गुरु के वाक्य पालन करते हो तो क्या होता है। अभी मैंने बोला थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्स, सारे देवी देवता, वैसे आप कर्मों के बंधन में रहते हो। ये प्लैनेट्स और ये नक्षत्र और ये कुंडली क्या दिखाती, ये सारे कर्मा दिखाती है। व्हाट इज दैट? दैट इज कर्मा। हम बोलते हैं ये प्लैनेट एक्चुअली में ये कर्मा है। ठीक है, जब आप गुरु की बात पे चलते हो तो सारे देवी देवता लाइन बांधे आके खड़े हो जाते हैं। जब डिवोटी चलता है तो बोलते हैं कि भाई इसको जाने दो, इसके पास पास है, इसके पास पास है, इसको नहीं कुछ छू सकते हम, नहीं तो ये पकड़ेंगे, वहां डालेंगे, वहां डालेंगे, वहां डालेंगे। समझ रहे हैं कितने सारे जंजाल, माया बहुत, माया अनलिमिटेड है, माया का पार करना बहुत मुश्किल है। कितने भी बड़े साधक हो आप, कितने भी बड़े ऋषि हो, मुनि हो, महर्षि हो, बहुत मुश्किल है। पर सोचो एक डिवोटी कित उन सबसे ऊपर चला जाता है, कैसे? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मालिक की बात मानकर। यार गुरुदेव ने मेरे को बोला है, सिंपल, चलो बोला खुश रहो,
अरे खुश रहो ना, कुछ भी हो खुश रहो, खत्म हो गई बात, कहानी खत्म। और मैं कह रहा हूं आप कर्मजाल बंधन से मुक्त हो, बस इसी चीज को रोज ना सुबह याद दिला दो। और आप, मैं देखता हूँ सबसे अच्छा क्या चीज है, जो डिवोटी होता है ना वो हर पल मरता है। असली डिवोटी हर पल मरता है। हर 2 साल 100 साल कितनी उम्र है ये नहीं पूछता, वो हर पल मरता है, हर दिन मरता है। जब आप हर दिन मर रहे हो, हर दिन जी रहे हो, तो क्या पास्ट और क्या रोना और क्या धोना। जो ये हर पल ना मरना बहुत गूढ़ है, बहुत अंदर तक है इसमें। जब आप हर पल मरना सीख लोगे, मतलब क्या हुआ, अभी मैं तैयार हूं जाने के लिए, इस मोमेंट में मैं तैयार हूं जाने के लिए, अटैचमेंट छूटने लग जाती है। कोई बॉदरेशन नहीं करता, कोई आपको प्रमोशन नहीं देगा, नौकरी नहीं लगेगी, कुछ बॉदर नहीं करता। हमारा है ना प्रोसेस, सब लोग करते हैं। 10 दिन बचे हैं आपके पास जाने के लिए, फिर 5 दिन बचे हैं, क्या होगा लोगों ने। मैं कह रहा हूं आप जब तैयार हो कि मैं इस पल तैयार हूं जाने के लिए, तो किसी से कलेश रह जाता है, कोई दुख रह जाता है। तो जीवन को ऐसे जीना है कि हर पल तैयार हूं जाने के लिए। लोग पूछते हैं ना मोक्ष कब मिलेगा, मोक्ष, मोक्ष तो हर पल है। मोक्ष तो जब आप फील करने लग जाओगे ना कि मैं मुक्त हूं, तभी मोक्ष है। और जीते जी मोक्ष मिलता है, मरने के बाद किसी को नहीं मिला आज तक। तो डिवोटी वही है जो गुरु की बात मानकर आगे चले। और फिर देखो सब देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लिटरली लिखा हुआ है और ऐसा होता है, लोगों ने बताया है। जो लोग अपनी ऊपर की जर्नी में गए हैं सबने बताया है कि भाई मेरे पास तो पास था, बाकी सबको तो पता नहीं। जैसे होता ना एंट्री में गए, इतनी भीड़, इतना मुश्किल, इतना ये चीज, और गुरु का बात मान के, गुरु का, क्योंकि गुरु का ऑरा तो उसके साथ रहता ही है ना जो गुरु के साथ आ गए 24 घंटे। देखिए 24 घंटे गुरु देख रहे हैं, 24 घंटे गुरु हमारे साथ है, ये समझ लीजिए, ये दूसरा सीक्रेट। 24/7 गुरु आपके साथ है, 24/7। नॉट इवन सिंगल सेकेंड ही इज नॉट विद यू। जस्ट स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इन योर हार्ट। ये शरीर ना, देखिए मंदिर हम और कहाँ कहाँ हम जाते हैं, सब जगह जाइए, ये शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है। बोलते हैं ना ऑनर करिए इसको, सब करिए। ये शरीर ही सबसे मंदिर है। और मालिक का वास कहाँ है, शरीर के अंदर, इस दिल के अंदर, इस सब कॉन्शियस में, सब जगह उनका वास है। एक भक्त पूछता है गुरु से, थोड़ा सा बताऊंगा। एक भक्त पूछता है कि मुझे गुरुदर्शन चाहिए। ठीक है, तपस्या करता है, पूछता है क्या मतलब, चाहता है कि मुझे गुरु का दर्शन चाहिए, गुरु का दर्शन चाहिए। उसके पास गुरु नहीं होते, गुरु नहीं होते तो बहुत प्यास लगती है, जैसे कहते हैं ना आदमी व्याकुल होता है, प्राण निकलने वाले होते हैं। तो ऐसा गुरु भी, देखो जिसने कहा ना सूत्र एक है, जिसके जिसकी तरफ जब तुम ध्यान करोगे ना, तो उनका ध्यान भी तुम्हारी तरफ जाएगा। ये नेचुरल लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। जब तुम ध्यान करोगे तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ जाएगा ही जाएगा, वो कहीं भी बैठे। तो जब ध्यान करने लग जाते हो, उनका ध्यान आता है, तो गए भाई, गुरु ने दर्शन दिए। तो बोलो मांगो, क्या मांगते हो। बोलते हैं, भक्त बोलते हैं कि मेरे को 1000 आंखें दे दीजिए, हजारों हजार आंखें दे दीजिए। बोले क्या करोगे भाई। बोले मैं आपका दीदार और दर्शन हर पल करना चाहता हूँ, हर पल करना चाहता हूँ, हर जगह सिर्फ आंखें ही आंखें। ये भक्त की कामना होती है। सोचिए कि 24 घंटे दर, तो हम 24 घंटे हमको मन में बसाए रखें जो उन्होंने बोला है ना। अच्छा हमको क्या ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करना है। गुरुदेव ने ये बोला, पर हमारा मन क्या करता है, ट्विस्ट एंड टर्न कर देता है, उसको सुई धागा बना के अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। वो नहीं करना, जिस स्थिति में बोला गया, जिस इंटेंशन से बोला गया, उसी को फॉलो करना है। जब उसको फॉलो करोगे ना आप, मैं कह रहा हूं कोई कर्मा कोई पत्री सब उससे बाहर हो। आप लोग चले जाओगे सिद्ध की करंट कैटेगरी में। जो सोचोगे वो होने लग जाएगा। जो सोचोगे, शादी नहीं हो रही, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शोहरत चाहिए, मटेरियल चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए, सब होने लग जाएगा। बस एक बात पकड़ लो और बस लग जाओ उसके ऊपर। दैट इज हाउ द वे टू गेट सिद्धीज।
तो जो मैं एक सीक्रेट बता रहा था तीसरा, उसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सीक्रेट क्या, ये तो कहूंगा मैं, सिद्धि बोलूंगा इसको। जो जो इसको सुनेगा ना उसके पास आ जाएगी, बस मुझे इतना मालूम है। और फीडबैक जरूर देना कहीं पर भी मिलोगे लाइफ में। लाइफ तो सब इतनी छोटी लाइफ है, कहीं कहीं तो मिल ही जाओ, नहीं तो ऑनलाइन ही दे देना। जानना चाहेंगे सब लोग हैं पूरा 100%, 200%। देखो ये जो भी आ रहा है ना, फ्लो हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये सब फ्लो हो रहा है। मालिक देना चाह रहे हैं, मेरे थ्रू देना चाह रहे हैं, तो मैं आपको दे रहा हूं। तो जब भी किसी मुसीबत में पड़ो, जब भी किसी मुसीबत में पड़ो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई काम ना हो रहा हो, कहीं दिक्कत हो, क्या करना है? आंखें बंद करनी है। आंखें खुली भी रख सकते हो, आंखें बंद करो, अच्छा है। और मन में 5 बार, 5 टाइम्स। अच्छा उससे पहले ना सब ट्राई कर लेना, अपने बस में जो भी हो, दुनिया में जो बस में हो ना, सब ट्राई कर लेना, ताकि संशय ना रहे कि यार ये तो होने ही वाला था। कई बार होता है ना कि यार यार ये तो होने ही वाला था, इसमें थोड़ी दम है। सब ट्राई कर लेना पहले, अपनी औकात में जितना हो ना, जितना वो सब ट्राई कर लेना, जितना तुम्हारी सामर्थ्य में हो जिसे कहते हैं, उसके बाद ये करना। और मैं सुना आप, मेरे पास तो मतलब कितने कितने लाखों लाखों किस्से, फ्लाइट तक रुकवा दी, पता नहीं क्या क्या रुकवा दिया क्या क्या हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इतनी सारी चीजें, मतलब पूरी लाइफ जो है ना 180 डिग्री, 180 नहीं 360। आपको क्या क्या है कि जब भी आप मुसीबत में पड़ो, किसी भी प्रॉब्लम में पड़ो, आपने सब कर दिया, या आपकी कोई भी छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी प्रॉब्लम है, आपने 5 बार जय गुरुदेव बोलना है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मन में जय गुरुदेव बोलना है। और आप देखो आपका काम जहां पर भी होगा ना कोई मदद करने के लिए आपको आ जाए। ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, ये आज तक फेल नहीं हुआ। 5 बार जय गुरुदेव बोलना है आपको। वेजिटेरियन रहना इसकी कंडीशन है, प्री कंडीशन, नहीं तो नहीं होगा, ये सिद्धि काम नहीं करेगी। 5 बार जय गुरुदेव बोलो, कोई काम दुनिया का ना हो रहा, आपको लगो कि ये तो इम्पॉसिबल है यार, नहीं हो पाएगा, 5 बार जय गुरुदेव बोलो और सरेंडर कर दो, बस। आपको कोई ना कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में कोई ना कोई आएगा। मेरे पास तो लाखों बार हुआ है, लाखों बार। कितना सुनाऊं मैं आपको, कितना बताऊं? एक छोटा सा बता देता हूँ, ठीक है? कि भाई बताऊं, सुनना चाहते हैं? छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं। क्या भाई, बहुत पहले की बात है भाई, आजकल तो सुविधा बहुत हो गई, मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए या 7-8 साल हो गए। तो आश्रम में गए तब तक ना, वो बहुत ज्यादा टैक्सी वैक्सी का बड़ा उतना सिस्टम था, बड़ा उतना पंचुअल जिसे कहते हैं ना, अभी सब डेवलप ही हो रहा था, चीजें हो रही थी। तो हम गए, आश्रम में गए और फिर हमने बुक कर दी टैक्सी। और क्या हुआ, फ्लाइट सुबह की थी, करीब 5 बजे ऐसा कुछ, 5:30 बजे ऐसा कुछ था, ठीक है? मतलब 5 बजे बेसिकली सुबह की फ्लाइट थी, हमें लेटेस्ट बाय लेटेस्ट 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच ही जाना था, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, 6 बजे की शायद फ्लाइट। तो हम जो है निकले, फोन किया, 2 बजे उठ गए, 1:30 बजे 2 बजे टैक्सी वाले को फोन किया, भैया आ जाए, नहीं आया। फोन बंद, स्विच ऑफ, और सब जगह ट्राई किया, स्विच ऑफ जी, बंद। हमने कहा भाई उसने तो कमिटमेंट दी थी आएगा और अब नहीं आ रहा, तो क्या बोला जाए? अब जो भी रीजन हो, सब सोच ट्राई किया, नहीं हुआ। तो हम अपना बैग लगेज लेके आश्रम के बाहर गेट पे आ गए। गेट पे आ गए, वेट करेंगे भाई यहाँ से शायद टैक्सी मिल जाए। अब उस टाइम में इतना नहीं था, कम था, मतलब ट्रैफिक भी कम था, और कोई ऐसा फेस्टिवल भी नहीं शायद ज्यादा कोई था, सब लोग जा चुके थे। तो टाइम बीते जाए, टाइम बीते जाए, हम कोशिश किए जाए कोई बस, कोई टैक्सी, कुछ मिल जाए, सब तरह के कॉल कर लिए, सब पूरा सामर्थ्य जितना था कर लिया, 10 लोगों को फोन कर लिया। उसने बोला आता है, करते हैं, पर कुछ हुआ नहीं अल्टीमेटली। तो हमने मन में मालिक को याद किया, यही, मैंने कहा मालिक अब तो आपको ही अपनी गाड़ी भेजनी पड़ेगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप तो आपको ही अपनी गाड़ी भेजनी पड़ेगी। देखो ये हमने बोला, आप बिलीव करोगे, विद इन
मेरे ख्याल से 3 मिनट भी नहीं होंगे, 3 या 4 मिनट, 2 इनोवा व्हाइट कलर की हमारे सामने आती है। जो 3 या 4 मिनट 2 इनोवा व्हाइट कलर की, एक भी नहीं, दो दो आती हैं हमारे सामने, रुकती हैं, बोलती हैं आपको कहाँ जाना है। हमने कहा एयरपोर्ट जाना है, छोड़ सकते हैं? बोले हाँ हाँ बैठिए। मतलब क्या बोलोगे आप इसको, इनोवा वो भी व्हाइट कलर की, कोई और गाड़ी नहीं। हमने बोला मालिक अब तो आपको अपनी गाड़ी भेजनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, हमारी गाड़ी हमारी प्लेन मत छुड़वा। आई छोड़ के गई, मतलब उसने मुश्किल से 45 मिनट से पहुंचा दिया, 45 या 1 आवर लगा होगा, 1 सवा घंटा ऐसा कुछ लगा, बहुत जल्दी, मतलब 1 सवा घंटा ही, बहुत जल्दी, 45-50 मिनट्स आई थी। तो आप सोचिए कि इतना गुरु आपका ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज। किस्से तो बहुत हैं, बहुत किस्से मैं बता रहा हूँ। यहाँ यूएस में गए, यूएस में हम एक जगह फंस गए, फिर देखा कि यार ये कुछ नहीं हो सकता, सब जगह ट्राई कर लिया, सब चीज कर लिया, पर ये तो नहीं हो पाएगा, याद किया 5 बार जय गुरुदेव, बोला कहानी खत्म। ऐसे मदद आती। तो जिसको हमने हजारों 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 बार यूज किया और कभी आज तक फेल नहीं हुआ, तो ये चीज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? तो जो भी सुनेगा इसको, उसके पास भी चला जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन का है, जो भी स्टॉक को सुनेगा, पर क्या, वेजिटेरियन रहिए, शाकाहारी रहिए, फाउंडेशन क्या है, हॉलो एंड एम्प्टी। रात को सब छोड़ के सो जाना है, किसी से लड़ाई, किसी से कोई गिला शिकवा सब छोड़ के रोज मरने की प्रैक्टिस कर लो। सोचो भाई पंडित जी क्या बता रहे हैं, रोज मरने की। जब रोज मरने की हो जाए तो दिन में कुछ टाइम मरने की प्रैक्टिस कर लो। सब सोचो कि सब छुटने वाला है, अब जाने वाले हैं, देखो कोई परेशानी रह जाती है लाइफ में, कुछ रह जाएगा बताइए? कल आपको मरना है, कल जब आएंगे गुरु आपको लेने, देखो गुरु, अच्छा एक और सीक्रेट बता दें आपको, जब आप मरते हो, जब आप शरीर छोड़ते हो, तो डिवोटी को यमराज लेने नहीं आते, ना उसको दूत लेने आते, यमराज के दूत आते हैं वैसे सबको लेने, उसको गुरु लेने आते हैं। तो जो मैंने लास्ट टाइम बताया और जो मैंने अभी भी बताया कि अपने सब कॉन्शियस में जब आप गुरु के रखोगे ना, तो क्या वही रहेंगे और कोई रहेगा नहीं। नहीं तो क्या बीवी बच्चे, ये वो, उसके लिए वापस फिर साइकिल में घुस जाओगे आप, फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे माया के जाल में। समझ रहे हैं ना सब? सिंपल सा है, राइट? बिल्कुल सिंपल सा। तो अपने को खाली करते जाओ, रोज मरो, रोज मरना सीखो। गुरुदेव बोलते हैं ना, सबको कंकाल देख लो, सुना है नहीं सुना? सुना होगा। सारी प्रॉब्लम खत्म, लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हर दिन सुबह उठ के ये धन्यवाद करो, ग्रेटफुल रहो। देखो ग्रेटफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटफुल रहो कि आज तो चल रहा है, आज का दिन तो अपना है, आज तो श्वास चल रही है, आज का दिन अपना है। दिन भर दिन जियो, बाकी तो प्लानिंग सब कर रखी है ऑलरेडी सबने। प्लानिंग की चिंता मत करो, मेरे को यहाँ पहुंचना है, वहां सब पहुंच जाओगे, जहां पहुंचना है वहां बिल्कुल पहुंचोगे। जो प्रारब्ध में लिखा है ना, वो आपको मिलके ही रहेगा, कोई नहीं काट सकता। तो ग्रेटफुल होके रोजिना उठो, मालिक को, जैसे मैंने बोला, मालिक को याद करो, जिन भगवान को मानते हो उनको याद करो, अपने माँ बाप को याद करो, और फिर अपना शुरू करो दिन, कि आज का दिन तो अपना है, आज में जियो, प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल, प्रेजेंट मोमेंट में जियो ना, तो देखो लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो सारे सूत्र दिए हुए ना हमें, अगर हम एक को भी फॉलो कर लेना, सारे अपने आप फॉलो होते हैं और सारी चीजें आने लग जाती हैं। पर ये छोटे छोटे मैं एडिशन दे रहा हूँ। मालिक का ज्ञान तो ऑलरेडी बियॉन्ड है, मालिक ने दिया है। फिर आपको एस्ट्रोलॉजिकल कुछ बताता हूँ, जानना चाहेंगे? एस्ट्रोलॉजिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो ऐसा है कि देखो ज्योतिष में डेफिनेटली ये 99% कैसे हुआ और क्या हुआ इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट
एक बात बोली मैंने, जैसे ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सीक्रेट जिसका संबंध आपका ना, आपका पिछले जन्म से बहुत गहरा है। पिछले जन्म में किससे? आपके डीटी से, आपके भगवान से, जिनके आप पूजा करते थे, जिनकी आप पूजा करते थे, जिनकी वजह से आपको जो भी मिला, अच्छा मिला, जो भी मिला वो इस जन्म में उनकी वजह से मिला। ठीक है, तो 5th हाउस जो होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, वो होता है पूर्व पुण्य या पूर्व जन्म, पूर्व कर्मा। ये मालिक ने खुद ही बताया। मेरा सौभाग्य रहा, मैं बगल में बैठ के ट्रैवल कर रहा था तो मालिक ने बताया, तो आप सबको शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने जाके सबको बताया, शेयर किया। तो भाई, आप अगर उस देवी देवता भगवान की अगर आप पूजा करते हो, अर्चना करते हो, तो आपका भाग्य बहुत चौगुना बढ़ सकता है। और एक सीक्रेट और है कि सीक्रेट क्या है, ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है कि ऑटोमेटिकली आप उन भगवान, उन गुरु, उन तत्व के प्रति ऑलरेडी समर्पित हो, ऑलरेडी यू हैव ए कनेक्शन। बट बता मैं रहा हूं आपको, ये समझ लीजिए, आप ऑलरेडी शायद कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं एफिनिटी होगी, पर कई बार डाउट होता है कि किसको पूजा करूं। अगर पढ़ना, देखो पूजा तो सारी इन्हीं को समर्पित है और यहीं पर सब खत्म हो जाता है। पर फिर भी इतने सारे डेटी हमारे मालिक कहते हैं कि भाई सबको करते चलो, राइट। अगर फ्लॉलेस आपको अपनी जर्नी करनी है तो सबको प्रणाम करके आगे बढ़ते रहो, तो फ्लॉलेस रहेगी। नहीं तो कोई ना कोई पकड़ लेगा और फिर उलझा लेगा आपको। तो क्या करना है आपको, अपने जब हॉरोस्कोप खोलते हैं तो हॉरोस्कोप में 5th हाउस, जब भी अपना चार्ट खोलते हैं उसमें 5th हाउस को देखिएगा। 5th हाउस, 5th हाउस इज पूर्व पुण्य। मैं शो करूं क्या, कैसे होता है? मैं एक बार शो करता हूं आपको ना, तो शायद ज्यादा अच्छे से पता लग जाएगा। लेट मी शो। देखिए, तो ये है, ये आपका चार्ट ऐसे होता है। अब यहाँ नंबर कोई भी हो सकते हैं, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ये नहीं कि नंबर 1 लिखा है तो फर्स्ट हाउस, इसको हम फर्स्ट हाउस ही बोलते हैं। तो 5th हाउस कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5। यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा रह सकता है आपके चार्ट में। आप अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में नहीं आती तो मैं अभी बता रहा हूँ, बस इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है, बहुत सिंपल सी थी। यहाँ कोई भी नंबर लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 7 लिखा होगा, 8 लिखा होगा, 10, कुछ भी लिखा होगा। 12 राशियां हैं, 12 राशियां इन सब खानों में बटी रहती है। तो यहाँ जो भी राशि लिखी होगी उसको जरूर देख लीजिएगा कि उसका बड़ा संबंध है। ये पूर्व पुण्य है, पूर्व जन्म से डीटी से आपका संबंध है। तो अगर 5th हाउस में सपोज करो 1 नंबर है, 1 राशि होती है एरीज की। एरीज की अगर एरीज राशि है तो अगर आप, उसके लॉर्ड होते हैं हनुमान, ठीक है, उसके जो डीटी होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। एरीज जो है ना, एरीज जो है उसके लॉर्ड हुए प्लैनेट में बताऊं तो मार्स होते हैं, और मार्स इज रूल्ड बाय डीटी हनुमान जी। मंगलवार समझते हैं ना, मंगलवार, मार्स। तो अगर एरीज राशि है 5th हाउस में, उसके लॉर्ड है मार्स, उनके डीटी हैं हनुमान जी, तो आप अगर हनुमान चालीसा सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ये हो सकता है ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसा कोई है 5 नंबर जिसका हो 5th हाउस में? चलो, ऐसे ही सपोज करो 2 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड नंबर अगर लिखा हुआ है, यानी सेकंड राशि टॉरस है। अगर फर्स्ट राशि है तो हनुमान चालीसा
या स्कंद षष्ठी कवचम, ये दोनों अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने, आपके भाग्य का उदय होगा, क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिलेगी जो आपको आपकी टेकन केयर करते रहे पिछले जन्मों में। तो हनुमान चालीसा। दूसरा अगर होगा तो वो टॉरस है, जिसके लॉर्ड, जिसका जो लॉर्ड है वो है वीनस। तो आपको क्या करना है, देवी कवचम सुनना है। सुनिए सब, चैंटिंग की जरूरत नहीं है कि चैंटिंग सीखो, सुन लो वो बहुत है। देवी कवचम, देवी कवचम सुनिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत मतलब बहुत, छोटा मोटा नहीं। अगर तीसरा नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन, जेमिनी, लॉर्ड हो गए मरकरी, विष्णु सहस्त्र नाम सुनने से बहुत फायदा। ठीक है। पांचवा, अगर आप देख लो, जब तक आप देख बता रहा हूं तब तक देख भी सकते हो, या तो आप सुन भी लीजिए। वैसे पांचवा है सिंह, लॉर्ड है सन, आदित्य हृदय स्तोत्रम। अगर पांचवा नंबर लिखा हुआ है फिफ्थ हाउस में, आपने देख लीजिए फिफ्थ हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, अगर पता है, नहीं पता तो पूछ लीजिएगा बाद में। आदित्य हृदय स्तोत्रम। सिक्स्थ हाउस में, अगर फिफ्थ हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या, वर्गो, तो मरकरी है। मरकरी यहाँ भी बताया ना, फिफ्थ हाउस का बताया सन, तो आदित्य हृदय स्तोत्रम। फिफ्थ हाउस में अगर 5 नंबर लिखा हो, सिंह राशि लिखी हो, तो सन लॉर्ड है तो आदित्य हृदय स्तोत्रम। अगर वर्गो राशि 6 नंबर है तो विष्णु सहस्त्रनाम। अगर तुला राशि है 7 नंबर है तो तुला राशि है तो लक्ष्मी अष्टकम या ललिता सहस्त्रनाम। लक्ष्मी अष्टकम या ललिता सहस्त्रनाम। ठीक है। 8वीं राशि अगर वृश्चिक है, लॉर्ड बाय मार्स, तो बजरंग बाण या हनुमान चालीसा, ये सुनने से बहुत फायदा होगा। बजरंगी बीज से ऑलरेडी कनेक्शन होगा। 9वीं अगर राशि है, सेजिटेरियस है, लॉर्ड है जुपिटर, गुरु पूजा या गुरु पादुका स्तोत्रम या गुरु का सान्निध्य, गुरु से संबंध ऑलरेडी होगा। अगर 9 और 12 राशि है तो आपका पिछले जन्मों में भी गुरु से संबंध रहा है। 9 मतलब सेजिटेरियस और 12 मतलब पाइसेस। 10वीं राशि पे आए कैप्रिकॉन, सैटर्न, तो रुद्रम। अगर 10वां नंबर 10वीं राशि 5वें हाउस में है तो 11वां अगर कुंभ एक्वेरियस है तो सैटर्न लॉर्ड है, तो कोई भी शनि मंत्रा वो भी बहुत फायदा करता है। और अगर 12वां है तो अगेन गुरु पूजा या गुरु पादुका। तो आप अपने किस डेटी को, कई बार लोगों को मन में क्वेश्चन होता है ना कि हम किसकी पूजा करें। देखो वैसे तो सारी पूजा गुरु को अर्पित है, उनसे ना ऊपर कोई है। बाकी सम्मान सबका करना चाहिए, सबको करना चाहिए, हमें तो सिखाया जाता है, राइट। सब देवी देवता को प्रणाम करो तो आपका काम सुलभ हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर मत भटकिएगा। आपका गोल तो एक ही है, बस वो, और कोई नहीं। सारी पूजा भी उनको समर्पित। पर सपोज करो ये मंत्रा सुनने होते हैं, मंत्रा क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। ये मंत्रों को सुनने से बहुत फायदा मिलता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि 5वें घर में जो भी हो उसके अगर आप वर्शिप करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और क्या याद रखेंगे, जय गुरुदेव 5 टाइम्स। कोई काम ना बन रहा हो, ये वर्क करें। रात में हॉलो एंड एम्प्टी होके सोना है, सब समर्पण कर दो, सो जाओ। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब बात हुई कि एक्यूरेसी कैसे आती। एक्यूरेसी सिर्फ हॉलो एंड एम्प्टी। अगर आप अंदर से खाली हैं, आप अपनी सारी प्रिडिक्शंस को समर्पित करते जा रहे हैं कि भाई ये तो आप करवा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 99% एक्यूरेसी आती। मैंने ट्विटर में जितनी भी प्रिडिक्शन किए हैं, आई थिंक 2 या 3 कुछ इधर उधर होंगी, अदरवाइज 97% तो है। आज की डेट में भी इतनी सारी प्रिडिक्शन कर ली। ये तो ट्विटर मुंडेन प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूँ, वो भी गलती हुई, मुझे मालूम हुआ गलती, क्योंकि वो
कुछ गलती मैं नहीं कर दी, अदरवाइज तो शायद वो 99 या 100 का ही रहता। और कर सकता है आदमी, घर कर सकता है, दैट इज गुड एनफ। मतलब 97% इज गुड, 95 to 97%। तो जगह आप हॉलो एंड एम्प्टी रहते हैं ना, तो आपकी प्रिडिक्शन सही रहती है। और दूसरा, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो मैं पढ़ाता हूँ, पूरी दुनिया में पढ़ाता हूँ, 6 महीने का कोर्स होता है, 2 घंटे हर हफ्ते होते हैं। आप उसको एज ए सेवा भी यूज कर सकते हैं और एज ए अल्टरनेटिव करियर पाथ भी यूज कर सकते हैं। भाई मालिक ने बोला पढ़ाने को, हमारा तो काम पढ़ाना है, हमारा तो विषय मिशन ही जीवन का है कि हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर हो। देखिए पुराने टाइम में मिजरीज नहीं होती थी, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई, या हर घर 2 घर में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर होता था जिसको थोड़ा ज्ञान होता था, थोड़ा मतलब डिसेंट ज्ञान होता था, वो बता देता था। क्योंकि सब टाइम हम परेशान क्यों होते हैं, कभी टाइम डिफिकल्ट आ जाता है, कभी टाइम ऊपर नीचे आ जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। जब पता है कि भाई ये टाइम ऐसा है, इसमें ये उपाय कर लो, आराम से निकल जाता है, सहजता से निकल जाता है। तो इसलिए पुराने टाइम में मिजरीज नहीं थी। और एस्ट्रोलॉजी देखिए, ये आपको विजडम देता है, तो हर मनुष्य को सीखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी। ये एक के लिए नहीं है, हर मनुष्य को, हर आदमी को सीखना चाहिए। आप उसको अपने अपनी विजडम के लिए यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी सेवा के लिए यूज कर सकते हैं। और देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ये इस तरह का शास्त्र है कि आप इसमें बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत इजी है समझना है इसको। इसमें सिर्फ एनर्जीज है, नंबर्स है। मैं कहता हूँ जो 10वीं क्लास का बच्चा है ना, वो भी इसमें मास्टरी कर सकता है। पर हाँ, अभी परमिशन नहीं मिली, अभी 18 से ऊपर की परमिशन मिली है कि 18 से ऊपर कोई पढ़ाऊं। मैं तो 8 साल 10 साल के बच्चों को भी एस्ट्रोलॉजर बना सकता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट वाला। 10-12 साल में भी, शायद 8 साल कम हो गया, 8 साल कम हो गया, ज्यादा कम हो गया, 12 साल, क्योंकि 12 साल के ऊपर ये ज्ञान देना चाहिए। पर अभी 18 साल का, 12 से 16 वाला जब परमिशन मिलेगी तब बांटा जाएगा। और अभी 18 साल का हो जाए तभी गए तो ज्यादा अच्छा रहता है। इतने पहले सीखनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो है ज्ञान बहुत अमोलक है। थोड़ा मेच्योरिटी आ जाती है तभी समझ में आता है। तो 18 साल से ऊपर हर कोई कर सकता है और हर किसी को सीखना चाहिए। सीखोगे ना तो आपकी लाइफ खुद ही ब्लॉसम होगी। समझ रहे हैं आप? परफेक्ट। तो अगर इंटेंशन है सीखने की, ये मत सोचिए कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो ये याद करना पड़ता है, वो नहीं, बहुत ईजी है, आई टेल यू। मैं अपने स्टूडेंट्स का कितना सारा फीडबैक दिखा सकता हूँ जो बिल्कुल जीरो थे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड.com है, उसमें बहुत सारे फीडबैक डालूंगा, आप देख लो। और देखिए प्रिडिक्शन ऐसी ऐसी है, मैं आपको एक छोटी सी प्रिडिक्शन बताता हूँ, सुनना चाहेंगे सब लोग? देखिए टाइम तो हो रहा है ज्यादा, बट 5-7 मिनट और लूंगा। देखिए जो मैंने पर्सनल प्रिडिक्शंस की हैं लोगों की, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं कि बहुत मिजरी में आए हैं लोग, बहुत ही ज्यादा मिजरी में आए हैं। कि मतलब ऐसा था कि भाई अगर सपोज करो मैंने अगर कुछ उनको थोड़ा सा भी डिमोटिवेट किया, तो हो सकता है आगे जाके, मतलब यहाँ से निकल के या 1-2 दिन में वो शायद अपने आप के साथ कुछ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, पर मालिक की ऐसी दया रही, ऐसी गाइडेंस दी। जैसे हमारा ही कोई जान पहचान का आया, बोला भाई हमसे -2 करोड़ में हूँ मैं, -2 CR, पैसा देना है, पैसा नहीं है, घर पे खाने के वांदे पड़े हुए, एक तरह से उधार से चल रहा है सब काम, कैसे करें? बोले आप बताओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा देखो ये चीजें दिखती हैं, ये वाला बिजनेस कर लो आप। ये बोले ये 5 एरिया इनमें करना चाहते हो। मैंने कहा देखो ये 5 एरिया दिख रही है, 4-5, इसमें मुझे समझ में आया तो ये एक एरिया बहुत अच्छा है, इसमें करो आप, ट्राई सब में करो। मैं किसी को कर्म करने से मना नहीं करता। भाई हो सकता है मेरा ज्योतिष गलत हो, 1%, 1% तो है डाउट ना, 1% तो भगवान को दे ही रखा है, 1% गलत हो सकता है। तो मैं बोलता कर्म आप सब में करो, पर सक्सेस आपको इसमें मिलेगी। आज मेरे ख्याल से साल 1.25 साल हो गया उसको। -2 करोड़ से वो बंदा मालूम है कहाँ पर है? उसको कुछ रेमेडीज बता दी, कुछ चीजें बता दी। मैंने बोला अब तुम निकल जाओगे, चिंता मत करो, भगवान की कृपा है, निकल जाओगे। और वो बहुत सारी जगह से मिल के आ रहा था, उसको शायद कहीं होप नहीं थी, तो उसको एक आखिरी होप थी, क्योंकि वो ट्विटर कहीं फॉलो करता था, उसे पता है कि हम जो बोलते हैं वो सत्य होता है और हम नहीं बोलते। देखो माफी चाहेंगे शिव शिव, ये सिर्फ सब भगवान से आता है, हम तो बोल देते हैं बस, हमें कुछ नहीं आता, हम सही बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता। ये तो ऊपर से आता है, और ऊपर से ही आता है, सही बताए तो। और बोल देते हैं, हाँ कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा, बट वो आता ऊपर से ही। तो हम जो उसको बोले
आज वो +30 करोड़ का उसका एम्पायर है, +30 करोड़। तो -2, और उसने फिर बाद में शेयर किया, जब 2-4 महीने बाद आया हमारे पास, जब उसका ठीक हो गया सब, कर्जे चुक गए, तो बोला आपको मालूम है पंडित जी, उस दिन मैं, आप अगर जरा सा भी अगर ऐसा कुछ होता कि कोई हेल्प नहीं है, मैं सुसाइड करने जा रहा था। मैंने कहा ये बात, तो बंदा सुसाइड, और ऐसे कई केसेस आए हैं हमारे पास। एक थे बहुत बड़े बिल्डर थे, बहुत ही बड़े बिल्डर, अच्छे बिल्डर। अब भाई ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, 5-10 हजार करोड़ के आसामी, 2-4 हजार, 5 करोड़ के, 1000 करोड़ के, हाँ कभी 5-6 हजार करोड़ के आसामी होंगे, पर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ऐसा आ गया कुछ लफड़े में, कुछ पैसे फंस गए, कुछ फंस गए। हमने पत्री देखी, हमने कहा जी बहुत अच्छा, आपका है तो अच्छा, अभी टाइम चल रहा है, आप 2 महीने रुक जाओ, दिसंबर जनवरी तक, ये 2 साल हो गए, 1-1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। हमने कहा दिसंबर जनवरी तक आपका आ जाएगा पैसा, आप चिंता ना करो, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लोग, अच्छे अच्छे लोग दिवालिया हो गए ना, बहुत मुसीबतें आ गई। चिंता ना करो, आप दिसंबर जनवरी तक आपको मिल जाएगा, चिंता ना करो, आप दिसंबर 2 महीने और दे लो। बोला बोला पंडित जी ऐसी हालत है कि अगर नहीं आया ना पैसा, तो हम तो जी भी नहीं पाएंगे। हमने बोला आपको हम पे विश्वास है ना, आपको मालिक पे, हम पे छोड़िए, मालिक पे विश्वास है ना, हम पे मत करिए, उन्हीं पे करिए। आप 2-2.25 महीना रुक जाइए। और उसी टाइम फ्रेम में, जैसे वो टाइम कंप्लीट होने वाला था, उससे पहले ही, 15 दिन पहले ही, उनका 200 करोड़ का काम हो, जो मेन चाहिए था उनको सरवाइव करने के लिए, तो हो गया। तो बड़े खुश हुए, बताया उन्होंने। उन्होंने कहा भाई सब मालिक की दया है, हम नहीं लेते, हमने बोला कुछ सही हो गया भैया, बिल्कुल शिव शिव शिव, कई बार गलती से निकल जाता है, सब मालिक वो कराते, हम करते हैं। हमको तो कुछ नहीं आता, हम तो अभी भी मानते हैं हमें कुछ नहीं आता, हम तो उनका हुक्म बजाते हैं बस, ऊपर से आता है। टीचर हैं तो थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो ज्ञान मिला है उसको बांटते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। और ऐसे हजारों केस है, मैं कह रहा हूँ। हमारा एक दोस्ती था, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, उसको हार्ट नहीं मिल रहा था, 2 महीने से हॉस्पिटल में वेट कर रहा था। मार्च का महीना था, हमारे पास किसी तरह पहुंचा, वो पहुंचा क्या, फोन पे ही बात किया कि भाई हार्ट नहीं मिल रहा है, मेरी तो जिंदगी अब दाव पे लगी है, होगा कि नहीं होगा। हमने प्रश्ना किया। प्रश्ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके करंट कर्मों को अब्जॉर्व कर लेती है। मतलब आज क्या हो रहा है ना भाई, जब पैदा हुए तब अलग बात है, पर प्रश्न ऐसी चीज है, आपने क्वेश्चन किया और हमने आंसर किया, वो आपने जो भी अच्छा बुरा किया ना, उसका सब निचोड़ करके आपको दे देती है। तो हमने बोला आप चिंता नहीं करो, अब मई जून में मिल जाएगा, चिंता नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, जिंदा रहोगे, अभी लाइफ लिखी है तुम्हारी। देखो जिंदा मरण तो ये सीक्रेट्स होते हैं, हम किसी को बोलते नहीं। कि अब कोई पूछता हमारी एज क्या है, हम बोलते हैं भैया भगवान ने जो लिखी है वो हमने, पता तो सब होता है, देखो ऐसा तो नहीं पता नहीं होता, बट ये शेयर नहीं की जाती एस्ट्रोलॉजी में, unless until something critical is there which requires, otherwise it is not shareable। जन्म और मृत्यु सीक्रेट्स हैं, उनको सीक्रेट्स ही रहना चाहिए। हमने बोला कि भाई मई में मिल जाएगा, मई या लेटेस्ट होगा तो, बहुत लेट होगा तो फर्स्ट वीक हो जाऊंगा। 18 मई को उसको कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके आया, डॉक्टर्स का हुआ, उसके लिए हार्ट अवेलेबल हुआ और पूरा ट्रांसपोर्ट हुआ, और आपने बढ़िया किया उसने। तो सब पता लग जाता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मतलब कितने बताऊंगा केसेस में। मतलब अभी तो मैं सोच रहा हूँ कुछ टेस्टिमोनियल वगैरह अपडेट कर दूं, अपग्रेड कर दूं साइट पे, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड, हजारों में टेस्टिमोनियल्स हैं। तो इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकता, एक्चुअली बोलूं, सच बोलूं तो ये सब गुरु की दया है। तो सीक्रेट्स ऑफ प्रिडिक्शन क्या है? सीक्रेट्स ऑफ एक्यूरेट प्रिडिक्शन, you be hollow and empty. If you are hollow and empty and doing with the full gratitude and surrendering to the divine, आपकी प्रिडिक्शन गलत होगी ही नहीं। पर हाँ, आपको विद्या तो सीखनी पड़ेगी, बिकॉज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो प्रिडिक्शन होती है, मेरे स्टूडेंट्स 90% से नीचे नहीं प्रिडिक्शन करते। 85, 90, 80 to 90 मिनिमम में, मतलब मिनिमम जो जाएगा ना वो 80%, जो कि 6 महीने के बाद करने लग जाते हैं, जो कि एक शायद 20-25 साल कोई वैदिक पढ़ा होगा वो भी नहीं कर सकता। तो एक किस्सा था कि हम जो है, बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर, नाम नहीं लूंगा मैं, आए थे हमसे, आए कहीं मिले हमको, आश्रम में ही मिले, बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर, बड़ा नाम वाम है उनका, सीनियर भी हैं, बड़े भी हैं। तो तब 2019 की बात है, तो हमने बोला, तो ऐसी कुछ बात बात हो रही थी, हमने कहा जी प्रेडिक्शन कर रखी है। बोला राम मंदिर में क्या होगा पता नहीं। हमने कहा जी अक्टूबर के बाद फैसला आ जाएगा, मंदिर बनेगा। वो हमारी तरफ ऐसे देखने लगे, ऐसे
कि होगा नहीं होगा। एक और एस्ट्रोलॉजर, 2 एस्ट्रोलॉजर थे, एक तो बड़े बोले ऐसे देखने लग गए और एक ने तो बोला हो ही नहीं सकता। मैंने कहा देखिए ये ना ट्विटर, ये मालिक की कृपा से चल रहा है और यहाँ पर तो ट्वीट हो गया, तो ट्वीट हो गया मतलब सत्य होगा ही होगा, इतना हमें विश्वास है। और एग्जैक्टली अब राम मंदिर तो पता ही है आपको, और वो ट्विटर हमने की थी अप्रैल 2019 में, तो ट्वीट पे की है, और उससे पहले सितंबर 2018 में भी ट्वीट किया हुआ है कि भाई अक्टूबर 2019 के बाद राम मंदिर बन जाएगा। तो हो गई थी। और वो तो उनका क्या रिएक्शन था, वो बोले कि कैसे फाइंड आउट करते हो। मैंने कहा जी प्रश्न से पता लग जाता है सब चीज, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न से तो हमने विक्रम लैंडर का भी बता दिया था, अगर आप देखोगे तो। विक्रम लैंडर मतलब वो दूसरे ग्रह पे गैलेक्सी में अभी वो दूसरी जगह पे लैंड होने वाला है, जो आपको पता होगा, वो ठीक से लैंड नहीं हो गए। तो हमने बोला प्रश्न से, तो बोला अच्छा प्रश्न से, बोला कितना एक्यूरेसी आता है प्रश्न। मैंने कहा 95% से अबव ही आता है, इससे नीचे तो नहीं आया अभी तक। तो वो एक तरह से शॉक्ड में थे, बोले पूरी दुनिया का 5% आता है, तुम्हारा 95% आता है, ये कैसे। मैं क्या भैया गुरु की दया है और क्या। तो सीक्रेट्स जो है, अगर आपको जो मैंने बताया है वो आप फॉलो करेंगे, तो आप समझ लीजिए आप बहुत राइज करेंगे लाइफ में। अपना जो ड्यूटी है उसको करिए, रात का जो बताया, जो पहला मैंने सेशन किया है उसको सुनिए ध्यान से, वो फॉलो करिए। आज जो सिद्धियां बांटी हैं उसको अपना लीजिए, ट्राई करिए। हम तो कहते हैं, हम तो चैलेंज करते हैं जी, ट्राई करके देखो। देखिए बिजली के तार के, कोई बोलता है हम ज्योतिष में विश्वास नहीं करते, हमने कहा भाई बिजली के नंगे तार को जिसमें करंट आ रहा हो उसको छुओगे तो विश्वास करने की जरूरत पड़ेगी क्या। तो करंट देगा, ऐसी ज्योतिष है, करंट ही देता है जी। ठीक है, तो करंट पे विश्वास, तो वो तो अब बोलोगे भाई मैं आंखें बंद करके बोलूंगा अरे मैं विश्वास नहीं करता। अरे मत करो, सूरज तो अपने टाइम पे जगेगा ही ना, उगेगा ही। आपके आंख बंद करने से सूरज तो उगना नहीं छोड़ेगा ना। तो ज्योतिष को हमें बहुत पॉजिटिव वे में, विद द गाइडेंस ऑफ डिवाइन, हमें बहुत आगे ले जाना है। हर घर में ज्योतिष पहुंचाना है। एवरी होम वन एस्ट्रोलॉजर इज माय मिशन फॉर द लाइफ। तो पूरी दुनिया में ये फैलाना मेरा मिशन है, इसको मैं करूंगा और सब लोगों को इस रास्ते पे ले जाऊंगा ताकि लोग आगे बढ़े अपनी विजडम में। मैं कह रहा हूँ लाइफ में इतनी मिजरी है, अगर वो अपने स्टार्स ही समझ ले ना कि भाई मेरे स्टार्स में ऐसा लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ 90% 80% मिजरी तो ऐसी चली जाती है कि यार ये तो मेरी वजह से है और इसको मैं इस तरह से ठीक कर सकता हूँ। और बहुत सीधे सीधे सिंपल सिंपल उपाय हैं, मालिक ने बताए, थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लो एकदम। कितने सारे फीडबैक हैं। अभी जैसे एक बोली एक जो है वो बोले कि बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थे कि भाई मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन बनना था। तो हमने कहा हो जाएगा, चिंता मत करिए, आप ये फॉलो करिए, बड़े वो थे। तो मालिक की ऐसी दया हुई, हमने कहा होगा, आप चिंता मत करिए, आप तो ये है करिए इसको। और करीब मुश्किल से हफ्ते 10 दिन पहले हमें पता चला, उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई हो गया हमारा। हमने कहा देख, दया है। तो सारे काम देखो दया से होते हैं, और कोई तरीका नहीं है, कोई जादू नहीं है। एस्ट्रोलॉजर इज ए गाइड टू यू। असली सोर्स जो है ना वहां है। तो फोकस कहाँ करना है, वहां करना है। एस्ट्रोलॉजी में फोकस नहीं करना, पर हाँ जानने से सीखने से आपकी लाइफ सुधर जाती है, राइट, चीजें अच्छी हो जाती है। तो आपको ये करना चाहिए। कहीं बिजनेस कर रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, हमारे पास तो कितने बार हुआ, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, कुछ कुछ बड़ा डिसीजन लाइफ में लेना होता है। हमने को होता है भाई हमें तो नहीं लग, हम तो ऐसे बोलते हैं, देखो हम किसी को कर्म करने से मना नहीं करते, हम बोलते हैं दी ये किया, हमें तो नहीं लग रहा ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा, पर आप कर लीजिए, आपका मन है तो करिए, पर हमें लगता है हमें नहीं समझ में आ रहा, हम ऐसे बोल देते हैं। हम भाई हम किसी को नेगेटिव तो बोलते नहीं, हमारी आदत ये है नेगेटिव, हम बोलते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा, आप देख लीजिए, हमें तो नहीं लग रहा। और अल्टीमेटली वो 2-2 महीने बाद आके बोलता है जी हाँ अगर ये करते तो करोड़ों का लॉस हो जाता हमें, ऐसे करके। तो बहुत सारी स्टोरीज है, स्टोरीज का तो अंत नहीं। पर गूढ़ क्या अर्थ क्या है कि जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे सब कुछ है, भगवान तो क्या बोलते, जो हमारे सब कुछ है,
ध्यान उन पर रखिए और कुछ-कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ आपको बताना चाहेंगे, बहुत छोटी-छोटी रेमेडीज़। क्या कि अगर सपोज़ सन बढ़ाना है किसी को, खाने-पीने की रेमेडीज़ बताता हूँ, बहुत ही छोटी। अगर आपको सूर्य बढ़ाना है, तो आप जैगरी अगर खाते हैं, हनी, कोकोनट, ऑरेंज खाते हैं, तो आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है। ये खाद्य पदार्थ से रिलेटेड है। ऐसे ही ना मिल जाएगा आपको। तो वो अच्छा मैं तो सिर्फ़ एक ही चीज़ बताऊँगा इसमें, ये तो इंटरनेट पे कहीं न कहीं मिल जाएगा आपको। मैं एक चीज़ बताऊँगा, अगर गुरु तत्व अपने अंदर बढ़ाना है ना, तो खाने से पहले थोड़ा-सा मीठा, खाने के बाद थोड़ा मीठा। ये देखिए गुरु तत्व जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो जाए। मैं एक ही प्लैनेट बताऊँगा, बाकी तो बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। अपना गुरु तत्व स्ट्रॉन्ग करना है, जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है, खाने से पहले थोड़ा मीठा, खाने के बाद थोड़ा मीठा इससे। और ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। असली चीज़ तो ये है कि हमें फ़ोकस मालिक पे करना है, जो उनकी बातें हैं, जो उन्होंने बोला है, उसको फ़ॉलो करना है। समझ गए आप? बाकी देखो, कोई भी मेरे से भूल चूक हुई हो, मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है? और आई थिंक इतना बहुत है, देखिए बातें करने को बहुत है, ठीक है? बट हमें टाइम की भी लिमिटेशन थोड़ी देखनी है, टाइम काफ़ी हो गया है, तो यार पंडित जी इतना जबरदस्त आपने बताया, मतलब आंखें खोल दी। एंड रियली बहुत सारे जो लोग हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं पंडित जी, तो सबसे सही तरीका क्या है आपसे कनेक्ट करने का? क्योंकि बहुत जन है जो आगे आपसे सीखना भी चाहेंगे, प्लीज उन्हें एक रास्ता दिखाइए। हाँ जी, मैं अभी गुरु पूर्णिमा पे 16 जुलाई पे 16 जुलाई को मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का, जो जिसको कुछ भी नहीं आता, आप ज़ीरो हैं सपोज़, तो भी आप सीख सकते हैं और आप एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते हैं। उसके लिए पहले अगर कुछ भी नहीं आता तो 4 घंटे की वीडियोज़ की हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी की, कि थोड़ा-सा आ जाए, पता आ जाए। उसके बाद मैं एक सेशन ले लेता हूँ जिसमें से एक फाउंडेशन क्लियर हो जाए और फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। और हफ्ते में सिर्फ जो है 2 घंटे देने और उसके अलावा कुछ नहीं देना। सिर्फ आप क्लास अटेंड कर लें, क्लास में कर लें, उसके अलावा अगर हफ्ते में आधा घंटा भी दे दिया ना आपने, तो भी बहुत है। बट क्लास रेगुलर अटेंड करनी है, ठीक है? क्लास रेगुलर अटेंड करनी है और इसमें आपको मेरे को रीच आउट करने का तरीका सीधा-सा है। अभिषेक जी आप जो है जो टॉक होगी उसके नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे दीजिएगा। मेरे को रीच आउट करने का बेस्ट तरीका है, मेरा फ़ोन नंबर रहेगा, सबके पास होगा ही, अब तक आ गया होगा। व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को, फ़ोन करिएगा ना तो शायद मैं किसी सेशन में होऊँगा, कुछ होगा, नहीं उठा नहीं पाऊँगा, शायद रिवर्ट ना कर पाऊँ। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं ज़रूर रिवर्ट करूँगा आपको। हो सकता है 1 आध दिन डिले हो जाए क्योंकि कई बार बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ मैसेज आते हैं, तो पर मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगा। आपको रिवर्ट करूँगा, जो भी आपको क्वेरी है, सीखना है, समझना है, करना है, वो ज़रूर करूँगा। और बाकी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड डॉट कॉम है, उसपे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और भी कुछ होगा वो मैं अपडेट करता रहूँगा। मैं वास्तु भी पढ़ाता हूँ, वास्तु का भी कोर्स है और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स है। तो पढ़ाता हूँ, मुझे तो अपना काम करना है, हर जगह विज़डम फैलानी है। कुछ फ़ीस है, कुछ कंट्रीब्यूशन है, डेफ़िनेटली वो आपको सब उसी में पता लग जाएगा। यस पंडित जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, 2 पॉइंट पे आपको भैया के पंडित जी के नंबर मिलेंगे। एक तो पहला यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा जरूर, दूसरा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। और जितने भी लोग जूम में भी नंबर मांग रहे हैं, आप भी वहां पे जाइए, कमेंट कीजिए यूट्यूब में कि आपने क्या सीखा, क्या आपकी लर्निंग थी, आप क्या फील कर रहे हैं। जो चीज हम एक्सप्रेस करते हैं वो और मल्टीप्लाई होता है। तो आप लोग का कमेंट बहुत जरूरी है, यहाँ पे मत करना जूम पे, यूट्यूब पे करना कमेंट, ताकि ये सेशन भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और और जो लोग यूट्यूब में भी देख रहे हैं ये सेशन, एक सेवा तो आप कर दीजिए कि जिन लोगों तक गलती से नहीं पहुंच पाया है ये सेशन, ये एक ऐसा सेशन है जो जिंदगी बदल सकता है, आप उन लोगों तक ये शेयर कर दीजिए, कहीं ना कहीं से पहुंचा दीजिए। और नीचे एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा, मस्ट वॉच, ये जरूर डाल दीजिएगा क्योंकि ये इससे इम्पोर्टेंट और क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आता। एंड जी, बिल्कुल, बिल्कुल अभिषेक जी, ये तो आपने बहुत भला का काम कर रहे हैं, आप इतने लोगों को बुला रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं तो शायद मैं शेयर भी नहीं करता। जो आता है मेरे पास तो शेयर करता, पर पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करना और करवाना बहुत बड़ी बात है। मतलब श्रेय आपको जाता है, मैं तो कहता हूँ ऑब्वियसली
ठीक है, सब मालिक करा रहे हैं, वो बात सही है, पर श्रेय आपको जाता है, क्योंकि Yeah. बहुत बड़ी बात है कि इस सब चीज़ों को लाना, आगे करना। और मैं ये बोलूँगा कि इसको करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, और जो-जो आपको यहाँ से लर्निंग मिल रही है ना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। इम्प्लीमेंट करिए, देखिए आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। Yes. बहुत भाई, एक बोला गया है ना, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। सर कटा के भी अगर गुरु मिल गए ना, उनका सानिध्य मिल गया, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। इस लाइफ का पूरा पर्पस ना सिर्फ यही होना चाहिए कि गुरु की बात को, गुरु की आज्ञा को, गुरु के वाक्य को, गुरु की इंटेंशन को, गुरु की जो नॉलेज है उसको बढ़ाया जाए, बांटा जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। ये सब तो ऐसे ही क्षणिक है, क्षणिक। भाई किराए का मकान है, जाने वाला है, किसी टाइम भी चला जाएगा, कल बोलेंगे चलो खाली करो। किराए का मकान है ये, कहाँ बिल्डिंग बनाइएगा, क्या क्या गाड़ी खरीदिएगा, ये खुद ही किराए का है। तो आप किराए के मकान से कितना कर लीजिएगा, समझ रहे मेरी बात? इस किराए का मकान यूं निकल जाएगा, यूं यूं। कल है कि नहीं है, कल मैं हूं कि नहीं हूं पता नहीं, आप है कि नहीं है पता नहीं। तो जो जो एक एक पल है ना, बस उनकी याद में, उनकी दीदार में और उनके प्रेम में समर्पित। जो बन सके वो करिए, जो बन सके करिए। आप देखिए लाइफ में, गुरु मूर्ति कति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, 8 पहर निखरत रहे गुरु मूर्ति की ओर। बस मालिक को निहारते रहिए, अपना काम करते रहिए। कहा ना वो बात, बताए ना, सबकॉन्शियस में ध्यान करते रहिए, सारे काम करते रहिए, अपने आप बनता चला जाएगा सब कुछ। सारा यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा, सोचो। सारे देवी देवता आ जाएंगे आपके पास सपोर्ट करने, आपको मालूम नहीं है। हजारों 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 इतने यूनिवर्स हैं, इतने प्लैनेट्स हैं, हम क्या, हम तो डॉट में भी नहीं है। उनके मालिक आपके साथ हैं, तो आप सोचिए आप क्या चिंता करते हैं, मुझे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अरे करके तो देखो, जो बता रहा हूँ, सब मिलेगा, सब मिलेगा। बाहर का भी मिलेगा, अंदर का भी मिलेगा। Yes. ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा एंड रियली मैं, ये एक ऐसा सेशन था जो ऐतिहासिक था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव एवरीवन। आई होप सब अच्छा लगा होगा। यस त्रुटि यस, हो, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिए। अरे बहुत अद्भुत रहा सेशन, थैंक यू थैंक यू।